Welcome you once again in my channel Kalamkari. So as you know that in the previous videos I have discussed with you people about what is language, what are the linguistic principles, what is the relationship between language and gender, language and identity, language and power, and what is language across the curriculum. So this is the topic which is in the unit 1, that is language and construction of knowledge and multilingual classrooms. So as we know that without language human society is unthinkable, and it is the only means of communication of thoughts and ideas either in speech form or in writing form. So language like society is constantly evolving and is subject to growth and change in much the same way as living organism. जैसे हम change होते हैं, languages भी change होती हैं. So it is a method by which a person expresses his thoughts and feelings in such a way that they are understood by others. So it also speaks about the mental character of the person. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कोई भाषा यूज़ करता है तो आप उसकी जजमेंट लगा सकते हो दैट आइडेंटिटी क्या है, who that person is, from where he has come from. So ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं. So आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. See, apart from communication, language also act as a medium through which we get knowledge, right? It and information, perhaps we also, our cognitive thinking जो होती है हमारी knowledge part is also somewhat related to the language, and हम जो है we are entirely dependent on language for conveying our thoughts and ideas. सो अगर हम जनरली मैं अगर आपको बोलूँ तो लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में हेल्प करती है. वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वॉट एवर यू आर हैविंग आइडिया इन योर माइंड, यू कैन कंस्ट्रक्ट इट एंड यू कैन एक्सप्रेस इट थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज. So knowledge of academic teaching learning is also possible by the language, as language act as an interpretive medium by which knowledge of any discipline, whether it is science, whether it is your geography, whether it is arts, whether it is other subjects, is constructed and communicated. कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा, सो वो जो है आप कम्युनिकेट कर ही सिर्फ उससे सकते हो, वो कर जिससे सकते हो, दैट इज़ लैंग्वेज. सो लैंग्वेज ही है जिससे लर्निंग पॉसिबल है, बिकॉज नॉलेज तो आपके पास है अलग अलग एरियाज़ की, अलग अलग चीज़ों की, बट हाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एंड हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट टू द अदर पर्सन. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट रीड योर माइंड. आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, सी माइंड जो है वो मैं पढ़ नहीं सकती, लेकिन जो आप माइंड में आइडियाज़ हैं, जो नॉलेज है, वो आप एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज़ क्या करते हो, लैंग्वेज एज एन इंटरप्रेटिव मीडियम, राइट. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एनी डिसिप्लिन बॉडी ऑफ नॉलेज विदाउट लैंग्वेज. हम सोच भी नहीं सकते. एंड इफ़ वी टू बी प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ, इट कैन बी सेफली डिडक्टेड दैट लैंग्वेज इज़ एसेंशियल टू नॉलेज, which implies that in order to expand knowledge successfully among learners of all kinds, focus on the various function of language will lead to a better results. आप लोग जितनी भी नॉलेज है, अगर मुझे नॉलेज लेनी है तो भी आई नीड टू गो थ्रू सम बुक्स. इवन अभी आप नॉलेज लेने के लिए ये वीडियो देख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इस नॉलेज को आप अपने दिमाग में बिठाओगे, और जब पेपर्स में योर कंस्ट्रक्शन जो आपने किया उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, चाहे वो लैंग्वेज राइटिंग मीडिया लोगे या जो मीडियम आप लेना चाहते हो, चाहे राइटिंग लिया चाहे वर्बल लिया, बट आपने उसको अपनी जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपने लैंग्वेज को यूज़ किया. सो लैंग्वेज इज़ वेरी हेल्पफुल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. विदाउट लैंग्वेज यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी थिंग, राइट, एज कनेक्टेड विद knowledge part. So this is about your language and construction of this knowledge. Now we'll talk about multilingual classrooms, right. Multilingual जो lingualism word है, ये दो वर्ड से बना है. one is multi and another one is linguism. multi means many, बहुत. हम in general भी कहते हैं ना, मेरे पास multi वो हैं, कोई भी चीज़ आप ले लोगे, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. मल्टीपल नंबर ऑफ पेन्स है, मल्टीपल नंबर ऑफ ये है, तो मतलब दैट मीन्स 1 2 3 4 नंबर मैनी. सो लिंग्विज्म इज ऑलवेज रिलेटेड विद लैंग्वेज. सो व्हेन वी कंबाइन दीज टू वर्ड्स वी गेट multilingualism. So multilingual or multilingualism means the language, it is the language, the use of language more than two or more languages. ठीक है.
So it is an asset, or we can say that it is an act of using or promoting the use of multi languages. चाहे वो एक स्पीकर जो है एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स हो, लेकिन उसको मल्टीपल जो है लोग यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं. ठीक है. अब बात आती है कि व्हेन समवन इज हैविंग नॉलेज ऑफ मोर देन 2 लैंग्वेज इज नोन एज लिंग्विस्टिक ऑल्सो एंड मल्टी लिंग्विस्टिक ऑल्सो. सो अगर हम टीचर जो है, टीचर को हमेशा लिंग्विस्टिक मल्टी लिंग्विस्टिक होना चाहिए. वाई? बिकॉज सपोजिंगली यू आर फ्रॉम पंजाब एंड द अदर पर्सन इज फ्रॉम जम्मू एंड यू नो पंजाबी बट यू आर नॉट वेरी गुड इन हिंदी or in English. So how will you communicate your ideas, your thoughts, what you are going to explain in the class? How you will explain it in an easy way? No, you will not be able to do justice with your subject and with the student. You will not be able to tell them what you want to tell them, and your knowledge will remain in your mind, right? तो वो आपके दिमाग में ही रहेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं उसको कैसे बताऊं. बिकॉज मीडिया जो आपके पास है वो आपका वीक है, आपको आती ही नहीं है हिंदी ना इंग्लिश. सो पंजाबी बच्चों को नहीं आती है, सो आप कैसे समझाएंगे? या तो आपको डोगरी आती हो, ठीक है, या तो आपको हिंदी आती हो. सो एक लैंग्वेज वाला जो टीचर है वो कभी भी जो है एक्सेल नहीं कर सकता अपने इस प्रोफेशन में. सो अ टीचर शुड ऑलवेज हैव मल्टी लिंग्विस्टिक जो है इन नेचर, ही शुड ऑलवेज बी मल्टी लिंग्विस्टिक. सो अगर हम इन ऑर्डर टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म अगर हम बात करें इन क्लासरूम, हम मल्टीलिंग्विज्म को इस तरह से भी बोल सकते हैं. अगर हम इसको दूसरे वे से बोलें कि मल्टीलिंग्विज्म होता क्या है, तो जैसे कि इन लिंग्विस्टिक फर्स्ट लैंग्वेज एक्वाइजेशन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द नेटिव स्पीकर. जो लिंग्विस्टिक वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्लोजली रिलेटेड है आपके लिंग्विस्टिक. जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश इज़ कॉल्ड एज लिंगुआ फ्रांसा, तो और ये शेयर्ड कॉमन लैंग्वेज है ऑफ प्रोफेशनल एंड कमर्शियल कम्युनिटीज़ की. सो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो सारे लोग जानते हैं, बिकॉज वी पीपल आर गोइंग थ्रू 3 लैंग्वेज फार्मूला. तो नेशनल, इंटरनेशनल एंड मदर टंग वाइडली जो है हम यूज़ करते हैं इन द कंट्री, जो कि एम करती है एट डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलिंगुअल करेक्टर ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम. सो वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको जो है उसके करेक्टर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं, विच इज़ पॉसिबल ओनली बाय लर्निंग 2 और मोर देन 2 लैंग्वेजेस. सो जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो सबसे बड़ा पाइवोटल रोल जो है इट इज़ ऑफ टीचर. टीचर जो है वही चेंजेस ला सकता है. सो आपने यहाँ देखा होगा देयर आर मैनी सेंट्रल मोर देन 500 सेंट्रल स्कूल्स विद द बायलिंगुअल मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. इन एडिशन टू दिस दे आर हैविंग 1 मोर सब्जेक्ट. संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन. एंड देयर इज ऑल्सो ज़्यादातर कंपल्सरी सब्जेक्ट संस्कृत होता है. बट प्रॉब्लम इज दिस, द स्टूडेंट्स who do graduation or who graduates from these schools go to English medium colleges because there is no college in the country that offers a bilingual medium of instruction. So Indian education system is like वो block होता है मल्टीलिंग्विज्म एज वन मूव्स इनटू हायर एजुकेशन. जो मल्टीलिंग्विज्म है वो वहाँ ब्लॉक हो जाता है जब आप हायर में जाते हैं. सो ये एक हमारी प्रॉब्लम है मल्टीलिंगुअल जो नहीं है. बट हम बात कर रहे हैं कि अगर क्लासरूम छोटी क्लासेस में अगर हम बात करें तो टीचर शुड ऑलवेज बी मल्टीलिंग्विस्टिक, बिकॉज इफ द टीचर विल बी मल्टीलिंग्विस्टिक ही और शी विल बी एबल टू टीच इन अ प्रॉपर वे, इन एन इफेक्टिव वे. अदरवाइज वहाँ पे जो है एक लकूना ये रह जाएगा, कमी ये रह जाएगी कि टीचर पढ़ाएगा बच्चों को समझ नहीं आएगा. बिकॉज वाई वी आर गिविंग एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द प्रोजेक्शन सेक, नॉट फॉर दिस कि वो बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं, रोट मेमोरी नहीं करनी है हमें उनकी नॉलेज जो है डेप्थ में देनी है और नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई करना है. सो उस दोनों चीज़ों के लिए टीचर अगर इस पे ज़्यादा, अगर मुझे डोगरी भी आती है, पंजाबी भी आती है, तो मैं बच्चों के प्रॉब्लम्स को बच्चों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ. रैदर अगर मुझे सिर्फ एक लैंग्वेज आती है तो मेरे और बच्चों में गैप रहेगा और वो गैप की वजह से वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. सो नेक्स्ट एडवांटेजेस की अगर हम बात करें कि मल्टीलिंगुअलिज्म का एडवांटेज क्या है. पहला एडवांटेज है दैट इट एनहांस द एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग. हाउ इट, व्हेन यू नो मोर देन 2 लैंग्वेजेस देन योर वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेज exponentially and you enhance the ability of speaking also. वैल्यू बढ़ती है when you are fluent in a particular language. ज़्यादातर हमारे यहाँ पे फ्लुएंसी ज़्यादा इंग्लिश में ढूंढते हैं, बट फ्लुएंसी हर लैंग्वेज जो भी आप बोलते हो उसमें अगर होगी, आपके वर्ड्स, आपके वोकेबलरी, आपका
सिंटेक्स, आपका जो सिमेंटिक पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग जो है उस लैंग्वेज की अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट फेम एंड यू विल बी यूर वैल्यू विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो लर्न बेटर देन अदर्स ऑटोमेटिकली है, आपको अगर लैंग्वेज आती है, जिस लैंग्वेज को मीडियम बनाया गया है, supposingly I know more than one languages, I will be able to get understanding of different subject in a easy way, ठीक है। अगर एक आती होगी तो it will be not easy for me। देन जब आपको लैंग्वेज आती है, इट इम्प्रूव्स अ पर्सन वर्किंग मेमोरी ऑल्सो, आपका जो वर्किंग मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। सो मल्टीलिंग्विज्म जो है क्लासरूम में ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है, एक टीचर और स्टूडेंट का जो एक गैप होता है वो भी नहीं रहता, क्योंकि टीचर अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है बच्चों को और बच्चा भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है टीचर और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग क्यों रिक्वायर है, बिकॉज अगर दोनों का जो है कम्युनिकेशन पार्ट अच्छा है, दोनों अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, तो ऑटोमेटिकली लर्निंग अच्छी बेटर होगी। सो ये चीज़ें जो हैं हमारी मल्टीलिंग्विज्म की जो है हमें एडवांटेजेस हैं, जिसके लिए हमें मल्टीलिंग्विज्म जो है, टीचर को भी मल्टीलिंग्विस्टिक होना चाहिए, बच्चों को भी। सो ये जो है आपका चैप्टर में इतना ही है, चैप्टर के अंदर जो ये टॉपिक है इसके अंदर इतना ही है कि हाउ लैंग्वेज हेल्प्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड व्हाट इज़ मल्टीलिंग्विज्म।